یہی کارواں آج کا مدعا ایسا ہے کہ اگر بات نہ کریں تو مدعے کے ساتھ ہی زیادتی ہوگی، اور مدعا ایسا ہے جس پہ بات کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے اور سبھی لوگوں کو اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ اگر ایسے مدعوں پہ بھی ہم نہ سوچیں تو شاید آنے والے کل میں ہم کسی کو یہ کہنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے کہ اس مدعے پہ ہم نے بات نہیں کی تھی جس مدعے پہ وقت کی اہم ضرورت تھی کہ بات کی جائے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد مسعود بخاری، آپ دیکھ رہے ہیں KTV اردو کشمیر۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے ہیں کہ آئے روز یہاں پر اس طرح کی خبریں گشت کرتی رہتی ہیں جن خبروں کے چلتے انسان کئی جگہ پہ انتہائی افسوسناک واقعات کو دیکھ کر کے دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اور ایسے واقعات کے لیے کوئی اور ذمہ دار نہیں، شاید ہم ہی ہیں، اور یہ ہماری نادانیاں ہی ہیں کہ ہم سیر و تفریح کی غرض سے گھر سے تو نکلتے ہیں لیکن خدا نہ کرے واپسی بہت کم لوگوں کی ہو پاتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ اپنی نادانیوں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ناظرین، ہم کبھی یہ بات نہیں کریں گے کہ ہمیں سیر و تفریح کے لیے نہیں جانا چاہیے، اور یہ بات بھی نہیں کریں گے کہ سیر و تفریح کا کسی کو حق نہیں، لیکن یہ بات بھی بالکل واجب ہے کہ جہاں آپ کو پتا ہو کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے اور آپ کے لیے یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، تو بھلا کیوں کر ہم اس طرح کے واقعات میں اپنے آپ کو اور اپنے پورے گھر بار اور کنبے کو پریشان کریں جو چیز ہمارے لیے واجب اور مناسب نہیں ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ کئی دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ پر سیر و تفریح کے لیے گئے ہوئے بچوں میں سے اتنے بچے دریا برد ہو گئے، ڈوب گئے، غرقاب ہو گئے، اور اس طرح سے کئی لوگوں کو بچا بھی لیا جاتا ہے اور کئی ہیں جو اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ خود جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے آپ نے دیکھا کہ اگر ہم صرف نالا سندھ کی بات کریں تو اس نے کئی لوگوں کی جانیں لے لی، اور اس طرح سے یہ دلخراش واقعات نہ صرف دل کو دہلا دیتے ہیں بلکہ کئی ایک جگہ پر نہ صرف ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں بلکہ پالیسی سازوں کے لیے بھی یہ ایک لمحہ فکریہ ہی ہے۔ جہاں اس وقت پوری دنیا کووڈ-19 کے بیچ میں جونج رہی ہے، وہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلسل لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ کچھ لمحے ایسے ملیں جہاں وہ جا کر کے اپنے دماغ اور دل کو تر و تازہ کرے، اور اس بہانے ہمارے بچے جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کسی سیاحتی مقام کا یا کسی ایسی جگہ کا رخ کر لیتے ہیں جہاں پانیوں کی کوئی کمی نہ ہو۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کچھ دنوں پہلے جو نالا سندھ میں واقعہ پیش آیا وہ کس پرکار کا تھا اور کتنا دلخراش تھا۔ اس حوالے سے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ جہاں اس وقت سرکار نے سبھی سیاحتی مقامات پر جانے کے لیے مکمل طور پر منع کر کے رکھا ہوا ہے، اور حکومتی ادارے بھی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایسی جگہوں پہ نہ جانے دیا جائے، لیکن پھر بھی ہمارے بچے ہیں کہ گھر سے نکل ہی پڑتے ہیں اور پھر جا کر کے کسی نہ کسی ندی یا نالے کے کنارے بیٹھ کر کے اپنا وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی اثنا میں جب وہ نہانے کے لیے ان نالوں کے اندر جاتے ہیں تو پانی کے تیز بہاؤ میں وہ نہ صرف اپنی زندگیاں کھو دیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پورے کنبوں اور خاندانوں پر بھی ہمیشہ کے لیے اور عمر بھر کا داغ رکھ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین آج ہم بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے رابطہ قائم کرنے کے لیے اپنے نمائندے جو ہمارے گاندربل کے لیے ہیں غلام نبی رینا، ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ آخر یہ جو واقعات ہیں آئے روز ان علاقوں میں کیوں پیش آتے ہیں۔ وہی ناظرین آپ کو یہ بات بھی بتائی دیتے ہیں کہ جب ہم کوکرناگ کی بات کرتے ہیں، ویری ناگ کی بات کرتے ہیں، نیلاسر سرنز کی بات کرتے ہیں، ایسی جگہوں پر بھی کئی لوگ نہانے کی غرض سے چلے جاتے ہیں، اور ترنگ نالے پر بھی کئی ایک اس طرح کے واقعے پیش آئے جس میں کئی انسانی جانوں کا آج تک ضیاع ہوا۔ اس چیز کو روکنے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس پر بھی بات ہوگی، لیکن پہلے رخ کرتے ہیں ضلع گاندربل کا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اس کو ضلع گاندربل سے غلام نبی رینا صاحب، آپ بتائیے کہ کیا کچھ صورتحال ہے اس وقت نالا سندھ کی، اور جو تلاش کی کاروائیاں ہیں وہ کہاں پر پہنچی؟ بتایا جاتا ہے کہ ایک بچے کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ مل چکی ہے، دوسرے کے لیے تلاش جاری ہے، آخر
क्या मामला होता है और आए रोज इस तरह के वाकयात क्यों पेश आते हैं? इंसिडेंट कंगन एरिया के किचपारा में वाक़ा हुआ। उसमें नूरबाग, पालपुरा, श्रीनगर के 3 नौजवान जो थे जी, वो सैरो तफरीक के लिए आए थे और वहां नाले सिंध के नजदीक ये डंपिंग पार्क है, तो वहां पर ये नहाने के लिए गए थे जी। तो ये जब नहा रहे थे तो अचानक पानी का तेज बहाव जो आ गया और इन तीनों को अपने साथ ले गया। इसमें से एक नौजवान जो है वो मौजूदाती तौर पर बच निकलने में कामयाब हो गया, क्योंकि उसने जो वहां पे कुछ लोग बैठे थे तो उन्होंने उसको जल्दी पानी से बाहर निकाला। हालांकि उसकी तो ये शिनाख्त नहीं हुई अभी तक कि उसका क्या नाम था। उसके बाद में 2 जो लड़के थे, एक 18 साल का जाहिद फारूक रथर और दूसरा जो लड़का था उसका नाम फैसल अहमद, जो दोनों नूरबाग पालपुरा श्रीनगर के रहने वाले हैं। जी जी। तो जब ये खबर किचपारा के आसपास के गांव में फैल गई तो लोग पूरी तौर पर जाए हादसे की जगह पर पहुंच गए और पुलिस को इत्तला दे दी और पुलिस भी पूरी तौर वहां पर पहुंच गई। तो उसके साथ ही इन्होंने जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट किया इनको रेस्क्यू करने के लिए। तो ये ऑपरेशन जो है जिला इंतजामिया की हिदायत पर की गया, जिसमें कि वहां SDRF की टीम को भी रवाना किया गया, वो भी आ गए, लेकिन शाम तक इन दोनों की डेड बॉडी हाथ नहीं आई। जी जी जी। तो आज सुबह जब दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया तो उसमें एक जो लड़का है जिसकी शिनाख्त 18 साल जाहिद फारूक रथर जो है उसकी डेड बॉडी प्रंग कंगन के मुकाम पर बरामद की गई। जी जी। और जो दूसरा है फैसल अहमद, उसकी डेड बॉडी अभी तक रिकवर नहीं की गई है। जी 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 जी। तो अभी जो रेस्क्यू टीम है, पुलिस और जो मुकामी लोग हैं, SDRF है, तो वो अभी इसमें लगे हुए हैं। जी। तो मुझे बताइए रेना कि अगर कुल मिलाकर के देखें गुज़श्ता कई बरस से, ये तो आज की बात नहीं है, बल्कि अगर हम पिछले 15, 20, 25 साल की तरफ भी जाएं तो अक्सर नाला सिंध में लोग गर्काब हो जाते हैं। जो आपकी कंगन की नहर है, नई बनी हुई थी, जिसमें पावर प्रोजेक्ट आगे चल रहा है, उसमें भी बच्चे जाकर के नहाने की कोशिशें करते हैं। कई लोग गर्काब हो जाते हैं, कई लोगों की लाशें मिलती हैं, कई की फिर मिलने से रह जाती हैं। अभी तक आप बताइए कुल मिलाकर के क्या अंदाजे के मुताबिक कितने लोग इसमें आज तक गर्काब हुए होंगे? देखिए शायद साहब, मैं आपको बता दूं कि ये जो नाला सिंध है ये बहुत ही एक उल्टा नाला सिंध है। उल्टा हम इसको क्यों कहें कि इसमें बहुत सारे जगहों से जो छोटे छोटे नाले आ जाते हैं। जी जी जी। तो ये पानी भी इस नाले सिंध में मिक्स हो जाता है और आगे हम बात करेंगे कि ये बालतल से डायरेक्टली ये नाला आता है। जी। उसके बाद में फिर आप सोनामर्ग के एरिया तक जब पहुंच जाते हैं, जी जी, तो सोनामर्ग के जो छोटे छोटे नाले हैं वहां से ही शुरू होता है। उन नालों का पानी भी इस नाले सिंध में चला जाता है और इसकी रफ्तार बिल्कुल ज्यादा तेज हो जाती है। जी, बहुत ज्यादा बहाव है। जी। उससे आगे आप पहुंच जाएंगे, फिर सुंबल एरिया है, वहां पे पावर हाउस है। जी। तो उससे भी जो पानी निकलता है वो भी दरिया में ही चला जाता है और उसकी रफ्तार उससे भी ज्यादा तेज हो जाती है। जी जी जी। और जो भी इसमें इस पानी में बिल्कुल घर के आब हो जाता है, उसका या तो डेड बॉडी मिलती है या डेड बॉडी नहीं मिलती है। मैं आपको बता दूं शाहिद साहब कि इससे पहले 2 साल पहले की बात है, हंग के मुकाम पर सोनामर्ग का एक एरिया उसको हंग कहते हैं। जी 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 जी। तो वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी बालतल से श्रीनगर की तरफ जा रही थी। जी जी। उसमें कुछ बाहर के जो कुछ 2 लोग थे और उसमें एक कंगन एरिया का एक लड़का था और वो सीधी पानी में हंग के नीचे ही वो वहां पर पानी में डूब गई वो गाड़ी नाले सिंध में। जी जी जी। और उसमें से क्या है कि कम से कम 10 दिन के बाद में वो डेड बॉडियां जगह जगह पे रिकवर की गई, यानी कि कुछ बॉडी गगनगेर से, कुछ बॉडी फिर कुलन से, कुछ बॉडी फिर रेजन के मुकाम से बरामद की गई। जी। तो ये एक खतरनाक एरिया है, मतलब इसमें जो नाला सिंध है उसकी जो पानी की रफ्तार है, इसमें लोगों को बिल्कुल मतलब इसमें इसके नजदीक जाना नहीं चाहिए। मुझे रेना साहब एक बात बीच में बता दीजिए, जो कि हम जब प्रंग की बात करते हैं, प्रंग में एक टूरिस्ट हट भी बनाया गया था, रेस्ट हाउस भी बनाया गया था,
तो इसके साथ साथ जो बाकी इसके इलाके पड़ते हैं वाइल्ड्स पुल से लेकर के फिर जब हम सोनामर्ग तक की बात करते हैं तो ऐसे इलाकों में कई एक जगहों पे लोग आकर के शाम को सैर तफरीह की गरज से आते हैं, फिर नाले के किनारे पर बैठ जाते हैं। मुझे बताइए कि क्या इन किनारों को प्रोटेक्ट करने के लिए इन किनारों पर किसी जगह पर फेंस वगैरह किया गया है या कोई इस तरह का बोर्ड वगैरह लिखा गया है जिस पर यह लिखा हो कि यहां पर नहाया ना जाए या इस पानी के अंदर ना जाया जाए, जिस पर डेंजर जोन बताया गया हो, या कोई टूरिज्म डिपार्टमेंट का या किसी और महकमे से वाबस्ता किसी की तरफ से कोई इस तरह की वार्निंग वहां पर दी जाती है या नहीं दी जाती? नहीं शायद साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसी भी जगह पे ऐसा कोई बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या जो इसमें फिशरीज डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कोई भी बोर्ड किसी भी जगह नहीं लगाया हो, ना ही इसको किसी जगह प्रोटेक्शन किया गया है कि आप इस नाले के पास नहीं जा सकते हैं, यहाँ नहीं नहा सकते हैं, क्योंकि आप अगर नहाने के लिए जाओगे तो आप डूब भी सकते हो। ऐसा किसी भी जगह नहीं लगाया हुआ है डिपार्टमेंट ने बोर्ड जी। तो आपको नहीं लगता जब भी इस तरह के कभी वाकयात होते हैं, इंतहाई दिलखराश होते हैं, पूरा जो इलाका होता है, जैसे हम मान लें कि प्रंग के पास कोई खुदा न खास्ता गरका बच्चा हो जाता है, प्रंग से लेकर के फिर कंगन तक के जो आस पड़ोस के गांव इस नदी नाले के आसपास रहते हैं, वो सारे के सारे रातों को जाग करके तलाश की कार्रवाई में जुट जाते हैं। लेकिन क्या सरकार का या किसी एजेंसी का या वहां की जो ये कह सकते हैं कि सिविल सोसाइटी है या वहां के नौजवानों की जो कोई कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या उनके दिमाग में कभी ये बात नहीं आई कि ऐसी जगहों को प्रोटेक्ट करने के हवाले से सरकार के इदारों के पास जाया जाए, जहां पर यह बताया जाए कि इन इलाकों को फेंस कर दीजिए, जहां पर अक्सर बच्चे उतर करके दरियाओं में छलांगे मारते हैं नहाने की गरज से और तैराकी नहीं जानते, और उसके साथ साथ कुछ बोर्ड ऐसे लगाए जाएं इलाकाई सतह पर जिसमें कम से कम ये वार्न किया जाए कि अगर कोई भी शख्स यहां से गुजरता है ये तो इस नाले के नजदीक ना जाए, ये जानलेवा हो सकता है। क्या ऐसा कोई ख्याल आप लोगों के दिमाग में आज तक वहां पर नहीं आ रहा है? देखिए शायद साहब, मैं आपको आज से 2 साल पहले की बात कहूं कि आज से 2 साल पहले गगनगेर के एरिया पे एक वाक़ा पेश आया था। एक जो लड़की थी वो गर्काब हो गई थी, तो उसके बाद में उसकी डेड बॉडी आज तक नहीं मिली जी। तो उसके बाद में हमारे कंगन में थे एक एसडीएम साहब थे महराजुद्दीन, तो उन्होंने 144 लगाया था कि भाई आप नाले सिंध के नजदीक नहीं जा सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये उन्होंने कहा था उस टाइम में। अच्छा, तो एक ऑर्डर भी उन्होंने निकाला था जी 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 जी। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कि आपने कहा कि बोर्ड लगाने की जरूरत है वहां पे, ताकि लोग अवेयर हो सके कि इस जगह पे जाना खतरे से खाली नहीं है जी। लेकिन किसी जगह पे ऐसा नहीं हुआ, तो वो 144 जो लगाया गया था वो उतने ही दिन चला जितने दिन उस लड़की की तलाश जारी थी जी। उसके बाद में फिर दोबारा वैसे ही हुआ जी जी, जैसा पहले होता आया है, गो रिवायतें कायम हैं जी जी। कि हमने भी बार बार कभी अखबारों में भी पढ़ा कि एडमिनिस्ट्रेशन को इससे कहा जाता था कि आप इन जगहों को एक तो प्रोटेक्ट कीजिए, आप इनमें जाली लगा दीजिए या इन जगहों पे बोर्ड लगा दीजिए जी 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 जी। तो लेकिन उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन ने या फिशरीज डिपार्टमेंट ने कोई भी ऐसा इकदाम नहीं उठाए हैं जी, जिसकी वजह से आज ऐसे हालात हमें देखने पड़ते हैं जी। एक बात बताइए, चूंकि इस वक्त सयाहती मकामात जो हैं उन पर मुकम्मल पाबंदी रखी गई है कोविड-19 के चलते, और सरकार कोशिश करती है कि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनामर्ग की बात करते हैं, यूसमर्ग की बात करते हैं, चाहे जितने भी हमारे यहाँ पर सयाहती मकामात हैं वहाँ पर लोगों को ना जाने के लिए कहा गया है। लोग फिर भी सैर तफरीह की गरज से अपने बच्चों को लेकर के, अपनी फैमिलीज को लेकर के इन नदी नालों के किनारे पहुँच जाते हैं। अच्छी बात है, वक्त अपना पास करेंगे, किसी जगह किनारे पर बैठ करके कुदरत की इस खूबसूरती का नज़ारा भी ले सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि कई जगहों पे हमारे नौजवान जो हैं वो बिल्कुल सर फिरे हो गए हैं और ऐसी हरकतों में पाए जाते हैं नदी नालों के पास, ऐसे ख़तरनाक जगहों पे जहां पर उन्हें मालूम है कि यहां पर खुदा न खास्ता जान भी जा सकती है। कुछ वीडियोस हमारे पास ऐसे भी हैं जिनमें हमने देखा कि बच्चे बिल्कुल बंड के ऊपर बैठे हैं, पकड़ के अपने आप को उसमें टांगे फैला रहे हैं। खुदा ना करे हाथ फिसल जाए कहीं पर या फिसलन मामूली हो जाए, उससे भी जान जा सकती है। क्या आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि ऐसे सभी इलाके
बिल्कुल ममनू करार दिए जाएं बैठने के लिए या वहां से गुजर करने के लिए, जहां पर सही मानों में लोग बड़े आराम से जाकर के बैठ करके अपनी जिंदगियां खो करके कुछ लोग आ जाते हैं और फिर उम्र भर का रोना जो है वो फैमिलीज का रह जाता है। और खासकर ना, क्योंकि इस वक्त अगर कोविड-19 नहीं होता तो शायद जितने भी यहाँ के हमारे वादी के स्कूल हैं वो अक्सर आ जाते हैं सोनामर्ग की तरफ से या पहलगाम नाले पर, लीदर के नाले पर चले जाते हैं, बाकी नाला फरोजपुरा टंगमर्ग की तरफ चले जाते हैं, शरंज की तरफ चले जाते हैं, बाकी इलाकों पे जाते हैं, अहरबल में चले जाते हैं। तो वहां पर आपने देखा होगा कि अक्सर स्कूल बच्चे जो हैं, आपको याद होगा शायद 2 साल या 3 साल पहले की बात है जब वहां पर टंगमर्ग के ही 3 बच्चे जो थे गरकाब हो गए थे आपके सोनामर्ग में ग्लेशियर के एक जगह पर टूट जाने से। तो ऐसी जगहों को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप लोग मुश्तरका तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं और उन्हें कहें कि इनको फेंस करके अगर हम बड़े बड़े होर्डिंग लगा सकते हैं, विजिट कश्मीर, पैराडाइज ऑन कश्मीर, तो ऐसे बोर्ड लगाने में क्या दिक्कत है जहां पर लोगों के लिए वार्न किया गया हो कि अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है तो आप इस पानी से प्यार ना करें जो पानी आपको हमेशा के लिए जिंदगी से हाथ धुलवा देगा। क्या ख्याल है आपका? जी शाहिद साहब, देखिए मैं आपसे कहता हूं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की एक जिम्मेदारी बनती है जी कि लोगों के जानो माल का तहफ्फुज करना जी, ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक फर्ज बनता है जी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी यहाँ इंसिडेंट हुए, एडमिनिस्ट्रेशन उन दिनों में ही काम करते हैं, उन दिनों में ही लोगों को अवेयर करते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं। दूसरी बात ये रही कि जो आपने कहा कि सोनामर्ग जैसे इलाके के थाजवास में कुछ गुलमर्ग के कुछ नौजवान थे, वहां बर्फ टूटा था, उसके जद में आकर वो हलाक हो गए थे। ये वाक़ा बिल्कुल मेरे आंखों के सामने अभी भी है कि मैंने खुद देखा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट है या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उन्होंने इस सिलसिले में अभी तक कोई इकदामात नहीं उठाए हैं। दूसरी बात, यहाँ हमारे कंगन के एरिया में एक नौजवान है जिसका नाम है बशीर अहमद मीर जी, जो बिल्कुल अच्छी तरह वो क्या वो कहते हैं पानी में जा सकता है, वहां मतलब वो रेस्क्यू कर सकता है। हालांकि कल जो वसन एरिया में जो वाक़ा पेश आया उसमें जब पुलिस थी, मुकामी लोग थे और वहां पे एसडीआरएफ की टीम थी, उसके बाद भी उस लड़के को बुलाया गया जी, बशीर मीर को लाइए, क्योंकि उन्हें इस बारे में बहुत सारी इल्म थे और वो पानी में जा सकता है जी, वो बिल्कुल पानी में जा सकता है। उसके बाद में आज उन्होंने भी काफी मेहनत की, तो उसकी वजह से इस एक लड़के की जो डेड बॉडी है वो रिकवर की गई है जी। तो शाहिद साहब, दूसरी बात आपने ये कहा कि मतलब जो प्रोटेक्ट करने की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में ये मसला उठाना ठीक है, तो उसमें आज आप देख लेंगे कि आज जो है आज शिद्दत की गर्मी है, लॉकडाउन बिल्कुल है, लॉकडाउन की वजह से जितने भी हमारे यहाँ टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको बिल्कुल बंद किया गया है। लेकिन जो शिद्दत की गर्मी यहाँ से चलती है उसमें कुछ शहर श्रीनगर या दीगर इलाकों से लोग जो आते हैं गर्मी से राहत पाने के लिए इन इलाकों में आ जाते हैं, जैसे गगनगीर एक एरिया है उसमें आते हैं, या किचपारा एरिया है वहां पे डंपिंग है वहां पर आ जाते हैं। तो उसके बाद में वो बिल्कुल नाले के किनारे पे ही बैठते हैं और उसमें से जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल पानी के अंदर चले जाते हैं, चाहे सेल्फी लेने के लिए जाते हैं, चाहे वो वहां पानी के अंदर नहाने के लिए जाते हैं। तो उसमें उनको उस टाइम में तो उनको पहले कोई खतरा दिखाई नहीं देता है ठीक। तो लेकिन वहां पे जो पानी का बहाव है जी, बिल्कुल बहाव है, उसका उनको उतना पता नहीं है कि ये पानी कितना तेज है जी, इसमें जितने मतलब जो नाले सिंध है इसमें किसी जगह जो गहराई है वो 20 फुट भी है जी, किसी जगह जो गहराई है वो 30 फुट भी है जी। दूसरी बात ये भी है कि नाले सिंह जो है, नाले सिंह में बहुत सारी जगहों पे ऐसी है कि वहां पे जो कुछ पहले एक्सट्रैक्शन हुआ करती थी उससे उसमें वो गहरे ज्यादा नीचे हो गए जी। तो उसमें अगर कोई आदमी चला जाएगा तो मेरे ख्याल से वो बाहर निकलने में उसको बिल्कुल बहुत टाइम लग जाएगा जी। तो इस वक्त आप जो चूंकि आप ये इन बच्चों का मामला आ गया और इस वक्त अवेयरनेस ज्यादा है, आज के दौर में इंटरनेट पे बाकी चीजों पे ये चीजें दिखाई जाती हैं, क्या कहना चाहेंगे कुल मिलाकर के आप जवानों को जो आपके इलाके में घूमने के लिए आते हैं, उन फैमिलीज को क्या पैगाम होगा कंगन के लोगों की तरफ से, गांदरबल के लोगों की तरफ से? देखिए शाह साहब, मैं पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूं कि पहले जो आप रेस्ट्रिक्शन लगाइए, नाले सिंध पे किसी को जाने मत दीजिए। जो अगर आते हैं चोरी छुपके भी जो लोग यहाँ पे आ जाते हैं
तो उन पर आप पहले रेस्ट्रिक्शन लगाइए। रेस्ट्रिक्शन इसके लिए लगाइए, रेस्ट्रिक्शन आने जाने के लिए तो हम नहीं कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन इसके लिए लगाइए कि वहां पे नाले के नजदीक ना जाएं। हाँ बिल्कुल, इन जगहों पे फिर कम से कम, अगर पता है एडमिनिस्ट्रेशन को गगनगिर तक लोग आते हैं, तो वहां पे कम से कम पुलिस के कुछ एहलकार रहने चाहिए जी, ताकि वो लोगों को दरिया की तरफ जाने ना दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन जगहों को आप प्रोटेक्ट कीजिए। जी 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 जी। इन जगहों पे आप बोर्ड लगाइए। जी 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 जी। आप नाले सिंध पे जो लोग जाते हैं, जी जी, आप 144 और लगाइए जी, ताकि इन पर भारी जुर्माना आयद होगा। जब किसी पर भारी जुर्माना आयद होगा तो दूसरा आदमी बिल्कुल वहां जाने से परहेज करेगा। जी, तो अगर हम ये चीज नहीं करेंगे जी जी, तो लोग बिल्कुल 2 दिन में ही बात भूल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर जो कंगन का जो एरिया है जिसमें 2 नौजवान की डेथ हो गई है, तो उसे हमारे भी बिल्कुल अभी मतलब हमें भी बहुत ज्यादा दुख है उसमें। जी 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 जी। तो और उनके घर वालों के ऊपर क्या पहाड़ टूट गया वो ही जानते हैं। बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन आम लोग ये बात सिर्फ 2 या 4 दिन तक अपने जहन में रखते हैं, उसके बाद में फिर भूल जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल लेकिन सही। अगर लोग भूल जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं भूलना चाहिए। सही फरमाया आपने रेना, बहुत बड़ी बात आपने कही कि अगर लोगों के अंदर ये बात नहीं रहती, क्योंकि लोग अलग अलग जगहों से वहां पे आते हैं। जो कल वाली टीम थी वो आज नहीं जाती, जो आज वाली है वो शायद अगले साल तक ना जाए। लोग तो भूल ही जाएंगे, लेकिन सरकार का काम है कि इस चीज को याद रखे। आपने केटीवी उर्दू में इस वक्त इतनी बड़ी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, आपने देखा कि किस तरीके से GN रैना जो थे वो अपनी बात बता रहे थे, और उनका कहना था कि इस वक्त कंगन के लोगों के लिए ये बड़ी मुश्किल की बात है कि आए रोज़ उन्हें जवान बच्चों की लाशें देखनी पड़ती हैं। उनका ये भी मानना था कि वहाँ का कोई मकामी जवान जो है वो इस मामले में काफ़ी ज़्यादा महारत रखता है, और वो शायद नाला सिंध की गहराइयों से और इसके तेज़ बहाव से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। इसलिए हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ऐसे जवानों की न सिर्फ हौसला अफजाई करें, बल्कि सरकार को उन्हें NDRF में या SDRF में शामिल करना चाहिए टीम में, ताकि उसे एक सेल्फ सिक्योरिटी भी रहे, और उसके साथ साथ उसे ये भी लगे कि अगर वो कहीं पर काम करता है तो उस काम का उसको सिला भी मिल रहा है। वहीं हम ये गुजारिश करेंगे LG इंतजामिया से कि न सिर्फ कंगन में, बल्कि प्रंग इलाके से लेकर के वाइल से लेकर के गगनगिर तक जितना भी इलाका है, आप माना कि वहां पर पिकनिक स्पॉट्स बड़े खूबसूरत हैं, उन स्पॉट्स को हम प्रोटेक्ट करने के लिए फेंस कर सकते हैं। उस फेंसिंग के साथ साथ कुछ ऐसी प्लेसेस भी बनाई जा सकती हैं, ऐसे स्पॉट्स भी बनाए जा सकते हैं जहां पर बच्चे अपने सेल्फी का शौक भी पूरा करें, लेकिन वो एक ऐसा स्पॉट बना हो जो साइड से मुकम्मल तरीके पर प्रोटेक्ट करके रखा हो, जैसे व्यू पॉइंट बनाए जाते हैं। इस तरीके की चीजें बना करके न सिर्फ हम सयाहत को फरोग दे सकते हैं, बल्कि इंसानी जानों को भी बचा सकते हैं। और ऐसी जगहों पे जो भी वालिदैन अपने बच्चों को भेजते हैं, बड़ा करम हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो न सिर्फ अपने बच्चों को बार बार इस चीज की तरफ ध्यान दिलवाएं कि उनकी जिंदगियां उनके लिए कीमती हैं, उनकी सैर व तफरीह तभी है जब वो हयात हैं, जिंदा हैं। और अगर वाकई तौर पर उनको इस पानी के कहर से, इस बहाव से बचना है, तो वो अपने आप को महफूज रखने के लिए जो बेहतर तरीके हैं वो अपनाएं और एहतियाती तदाबीर से काम लें। उसके साथ साथ जो द्रंग में भी आपने याद होगा 2 साल पहले वहां पर भी एक वाकया पेश आया था कि एक चट्टान के ऊपर चढ़ करके किसी लड़के ने सेल्फी लेने की कोशिश की थी और उसके साथ ही वो गर्काब हुआ। इसी तरीके से हजारों इस तरह के वाकयात हैं जो आपको न सिर्फ अहराबल के और बाकी आबशारों के बारे में मालूम होगा कि वहां पर भी लोग डूब करके मर गए। अगर आप लोग सैर तफरीह के लिए जाते हैं कि जिंदगी आपको मिले, और जिंदगी के सही नज़ारे तभी आपके लिए माने रखते हैं जब आप खुद जिंदा हैं, और कुदरत के इन नज़ारों को तभी जाकर के लोग आकर के देखने के लिए जाएंगे जब आप कश्मीर के वासी होकर के वहां पर एहतियात नहीं बरतेंगे। तो आने वाले मेहमानों को आप किस तरीके से ये कह सकते हैं कि एहतियात करें। आपके लिए आपकी सैर तफरीह सही मानों में ज़रूरी है। ये चमन तभी हरा भरा रहेगा जब आप इसमें एक बेहतर सोच और समझ के साथ रहेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा इस तरह के हादसात से, इस तरह के पानियों के बहाव में बहने से जवानों को, उन लोगों को बचाए जो जिनकी जिंदगियां वहां पर चली जाती हैं। जिस तरह से अमीरा कदल के ऊपर ब्रिज के साथ फेंस किया गया ताकि वहां से कोई खुदा न खास्ता नाखुशगवार वाकया पेश ना आए, इस तरह के नालों के ऊपर और टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर भी सरकार को तवज्जो देने की जरूरत है। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाने की जरूरत है जिसमें कुछ इस तरह के फोटोग्राफ्स होने चाहिए जो पूरी तरह से एक पिक्चर, पूरे मंजरनामे को जो है वो खुद ही
بھی بول دے کہ اگر کوئی اس میں چلا جاتا ہے تو اس کی حالت کیا ہو سکتی ہے، تاکہ ہمارے بچے بھی یہ بات سمجھ سکیں، اور اس میں اگر کچھ پیسہ سرکار کا خرچ آ بھی جاتا ہے لیکن اس سے اگر کچھ زندگیاں بچ جاتی ہیں اور فیوچر محفوظ ہو جاتا ہے تو یہ بڑی بات ہوگی۔ آپ کو اللہ سلامت رکھے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے آج کے شمارے سے اجازت، خدا حافظ ناصر۔